Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe my YouTube channel. और ये होली थर्सडे की वीडियोस हैं क्योंकि एडिटिंग नहीं की थी और टाइम भी नहीं मिला था, दैट्स वाई अभी कर रही हूँ और अभी डाल रही हूँ। और ये मैं तैयार होके जा रही हूँ चर्च। पर आज के दिन जगह जगह खुदावन के इबादत खानों में उसके नाम की हम्द और प्रस्तिश और वो रस्मात जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ अदा की, वही हमें एक नमूना सिखाया, एक हमें एक वो स्टडी दी, एक वो हमें आइए करके कहिए यीशु तेरे खून से बन के जिंदगी में यीशु तेरे खून से बन के जिंदगी मेरे उसी चला काले मेरे उसी चला काले तेरे लिए है सबके लिए शिफा जारी होती है। खुदा का कलाम जो हमारी जिंदगी है, खुदा का कलाम जिसे खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा उत्तम रुतबा दिया, क्योंकि खुदा का कलाम यीशु मसीह है। यूहन्ना फरमाता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाग के इकलौते का जलाल। यकीन जाने कलाम जब भी जारी होता है शिफा जारी होती है, क्योंकि कलाम का एक एक लफ्ज जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया।
آج ہم ایک زبردست عبادت میں ہیں اور آج جو ہے یہ جسے طرح طرح کے ناموں سے پکارا گیا ہے، جسے ہولی تھرسڈے بھی کہتے ہیں، جسے لاسٹ سپر بھی کہتے ہیں، جسے مارٹن تھرسڈے بھی کہتے ہیں اور جسے لارڈ سپر بھی کہتے ہیں۔ پاک جمعرات، ڈفرنٹ الفاظوں سے، ڈفرنٹ لفظوں سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ آج میں دو باتوں پر بات کروں گا، خدا کے کلام میں سے دو باتیں جو آج خاص اس فسح کی عید سے متعلق ہے، آج پاک جمعرات سے متعلق ہے۔ یہ کیوں مناتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم کیوں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، آج ان پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے مسیح لوگ ہولی تھرسڈے مناتے تو ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاؤں کیوں دھوئے جاتے ہیں اور یسوع مسیح نے وہ روٹی توڑ کر کیوں شاگردوں کو دی اور کیا تھا اس عید میں، کون سی عید وہ منا رہے تھے۔ آج میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، عید فطیر اور عید فسح کیا ہے عید پر بات کریں گے۔ قرآن مقدس میں سے ایک ریفرنس نکالیں گے، سرفراز بھائی سے درخواست ہے کہ ریفرنس پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ احبار اس کا 23واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت کی تلاوت کریں گے۔ پہلی بات جو ہم سیکھنے کو ہے اس کا 23واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کی تلاوت کریں گے۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ بے خمیری روٹی کھانا۔ ہاں جی، آمین۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ کہہ سکتے ہیں آمین؟ آمین۔ آپس میں بانٹ لو کیونکہ میں تم سے گرا اب سے کبھی نہ پیوں گا۔ یسوع مسیح نے اس روٹی کو لیا اور جب یسوع مسیح نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے شکر کیا اور جب روٹی توڑی تو اسے یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ یہ میرا بدن ہے۔ یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں اس بات کو سن کر شوق ہوئے ہوں گے۔ پہلی دفعہ انہیں کیونکہ بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن ان کی سوچ اور سمجھ میں یہی تھا کہ ہم فسح منا رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میرے لیے فسح تیار کرو، لیکن جب یسوع مسیح نے وہ روٹی توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی تو پہلی دفعہ سننے پر وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یسوع مسیح کہہ کیا رہا ہے کہ یہ لو، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا گیا۔ اور پھر یسوع مسیح وہ پیالہ لیتے، منا کیا رہا ہے یسوع مسیح؟ فسح، وہ غلامی سے رہائی جو مصر کی غلامی میں سے جو سال بہ سال صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، منا یسوع مسیح فسح رہا اور پیالہ لے کر شکر کرتا اور کہتا ہے کہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو تمہارے بہت سے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے اور میری یادگاری میں میں لے رہا ہے اور شکر کر رہا ہے۔ اور شاگرد جب سن رہے ہوں گے تو وہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یسوع کیا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ میرا خون ہے کہ تمہارے، اسے نہیں پتا تھا شاگردوں کو، اگرچہ یسوع مسیح ان کو بتا رہا تھا، گائے بگائے بتا رہا تھا کہ مجھے مصلوب ہونا ہے، لیکن اب تک وہ سمجھ نہیں پائے تھے، وہ آخر تک سمجھ نہیں پاتے۔ جب گتسمنی میں وہ دعا کر رہے ہوتے تو شاگرد بھاگ جاتے ہیں، شاگردوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یسوع کیا رہا تھا۔ یسوع مسیح نے جب پیالہ لیا اور شکر کیا، اسے کہا کہ یہ میرا خون ہے جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے نئے عہد میں۔ اب پرانا فسح جاتا رہا، اب پرانے فسح کی عید فطیر کنورٹ کس میں ہو گئی ہے؟ عشاء ربانی میں، جسے ہم عشاء ربانی کہتے ہیں۔ عشاء کا مطلب ہوتا ہے، ہم نے عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے، شام کی نماز، عشاء کہتے ہیں شام کو، اور ربانی یعنی کہ استاد کے ساتھ جو کھانے کی محفل تھی، جو اس کے ساتھ لاسٹ ڈنر تھا، اسے شام کے ڈنر کو، خدا کے ساتھ شام کے ڈنر کو عشاء ربانی کہتے ہیں۔ اسے اور بھی ناموں سے پکارا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو خداوند کا دسترخوان بھی اسے کہا گیا، اگر ہم دیکھیں تو روٹی توڑنا بھی اسے کہا گیا، اگر ہم دیکھیں تو اسے پاک شراکت بھی کہا گیا، اور اگر ہم دیکھیں تو اسے یوخرست بھی کہا گیا۔ اسے ڈیفرنٹ ناموں سے پکارا گیا۔ وہ جو پہلے عید فسح کے نام سے نکالی گئی یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب، آج ہم اس ہولی تھرسڈے کو صرف فوت ہونے کی رسم سے صحیح یاد کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں، ایک تو یسوع مسیح نے اس فسح کو عشاء ربانی میں کنورٹ کر دیا، کہ دوسری بات جو خاص اہم بات ہے، یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ آئے یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور 4 اور پہلا تو پہلی آیت سے پڑھیں گے۔
हाँ जी, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे, जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। आमीन। अभी चौथी आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। दस्तरख्वां से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। ये यीशु मसीह की बात हो रही है कि अगर हम तीसरी आयत से पढ़ें तो लिखा है, यीशु ने ये जान कर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया हूँ और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरख्वां से उठकर कपड़े उतारे, रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। और आगे, उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने, उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उसे पहुंचने शुरू किए। शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पहुंचना शुरू किए। यहाँ पर यीशु मसीह पांव धोने की रस्म को स्टार्ट करते हैं। यीशु मसीह दस्तरख्वां से उठते अपना, क्योंकि यहूदियों के लिए लाजिम था कि वो कोट पहनते थे। वो कोट के ऊपर होता है एक जुब्बा भी होता था और एक ऊपर की एक और कोट भी होता है। वो सारे कपड़े अपने उतारते और अपनी कमर पर कपड़ा बांधते, अपने रुमाल लेते और पानी लेकर, कलाम फरमाता है, अपने शागिर्दों के पांव धोना शुरू होते हैं। और जब हम देखते हैं कि शागिर्दों के पांव धोते हैं तो आगे चल के जब हम पढ़ते हैं तो पतरस ने कहा, नहीं तो मेरे पांव अब तक ना धो पाएगा। क्या तुम मेरे पांव धोना शुरू है? मैं तुझसे पांव नहीं धोऊंगा, तो मेरे अब तक पांव ना धो पाएगा। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, हाँ जी, कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। हाँ जी। पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी ना धो पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ शरीक नहीं। यस, तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। उसने कहा, मुझे पूरा धो दे। और खुदावंद यीशु मसीह आगे फरमाते हैं कि जो नहा चुका उसे पांव के अलावा और कुछ धोने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह ये सब कुछ कर चुका, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धो चुका, तो उसने एक खास बात की। 12वीं ऐसे पढ़ना शुरू करें। पर जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर भी फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ जी, सुने जरा फिर से। बस जब वो उनके पांव धो चुका, अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? उसे क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें समझ आई है? पतरस क्योंकि हैरान था, उसने कहा, मैं कभी ना धुलाऊं तुझसे पांव। यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ पांव ना धुलाए तो मेरे साथ शरीक भी नहीं। और ये सब कुछ करने के बाद यीशु मसीह ये कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? आज तक लोग समझ नहीं पाते कि पांव धोने की रस्म है क्या हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या है? क्यों यीशु मसीह ने पांव धोए? आगे, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो। और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया। तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव। एक ऐसा काम है जो फर्ज है। बस मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। ये एक फर्ज है, ये एक कमांडमेंट है। कहते ना, हमें फर्ज है, हमें कुछ चीजें करना फर्ज है और ये पांव धोना भी फर्ज है। खुदा ने कहा, ये फर्ज है कि जैसे मैंने दूसरों के पांव धोए तुम्हें भी दूसरों के पांव धोने। जब तुम, और क्योंकि हर एक का अंदाज़े बयां मुख्तलिफ है। लुका की इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 24वीं आयत से पढ़े। और उनमें ये तकरार भी हुई, हाँ जी, कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। अच्छा, उनमें ये तकरार, उनमें बहस शुरू हुई, उनमें ये झगड़ा शुरू हुआ। तकरार का मतलब होता है थोड़ी सी तर्क मिजाजी भी से कहते हैं ना, तकरार। आप कुछ कह रहे हैं, अगला आर्गुमेंट कर रहा है, तो ये क्या है? एक तरह तकरार। लिखा है कि उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। और आगे, उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं और जो उन पर इख्तियार रखते हैं
खुदावंद नेमत कहलाते हैं। खाली पाँव धोने की बात नहीं है, ये सिर्फ ये नहीं कि खाली पाँव धो दिया और अपनी जिंदगी जैसे मर्जी बसर कर लो। खाली पाँव धोना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है कि आपको छोटा बनना है। छोटा पता कब बना जाता है? छोटा तब बना जाता है अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप आगे से चुप हो जाओ, है ना। जब किसी बच्चे को डांटा जाता है तो बच्चा आगे से आपको डांटता है, वो आपको डांटता है, वो चुप कर जाता है ना। छोटे बनने का मतलब तो यही है कि अगर आपको कुछ कहा जा रहा है तो आप उसकी बर्दाश्त करो। खादम का एक स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपको खिदमत की कॉलिंग है, अगर आप चाहते हैं मैं खुदा के साथ लिंक हो जाऊं, मैं खुदा के साथ खिदमत करना चाहता हूं, तो सबसे पहले डिनाई योरसेल्फ, अपनी खुद ही का इनकार करो। यीशु मसीह को लोग दीवाना कह रहे थे, उसके भाई उसको कह रहे थे ये तो दीवाना है, इसकी बातों की तरफ क्यों गौर कर रहे हो, ये तो दीवाना है, ये पता नहीं क्या कुछ बातें। अगर देखें तो पागल का वर्ड यूज होता है, इसकी बातों पर क्यों गौर कर रहे हो? यीशु मसीह ने किसी की बात की परवाह नहीं की। उसे तरह तरह के नामों से पुकारा गया, उसे बुरा भला कहा, उसे तमाचे मारे गए, उसे मुक्के मारे गए, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया। कायनात का खालिक और मालिक, और सब कुछ सह गया। दिल से करें। खुदा आपको इसके नाम की सीधा से बहुत बहुत ब्लेस यू। आई अपनी आंखों से शुक्र करके ये प्याला अपने शागिर्दों को दिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये खून तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस प्याला में से पीते हो, तो खुदा उनकी मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। रस्म अदा की वही कलाम मुकद्दस में भी मरहूम है, और अब वक्त है कि वही रस्म को हम अदा करने को है। मैं चाहता हूँ चंद बात की हम दुआ करेंगे। ये वक्त यहाँ पे पाँव धोने की रस्म हो रही है। चर्च खत्म हो चुका है और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कल के लिए, क्योंकि कल गुड फ्राइडे है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।